ठीक है. So today we'll discuss about sigmatropic reaction. Sigmatropic reaction. It is a type of pericyclic reaction. Okay. Sigmatropic reactions are the type of pericyclic reactions. Okay. How the sigmatropic reactions are defined? What are the notations of sigmatropic reactions? That we have to see in today's lecture. So first of all, I will write the definition of sigmatropic reactions. Sigmatropic reactions actually also called as, इनको और क्या कहा जाता है? They are also called as sigmatropic shift reactions. ठीक है. इनका दूसरा नाम क्या है? इनको shift reaction भी कहा जाता है. They are also called as sigmatropic shift reactions. Okay. My voice is clear. Everything is clear to all. So I will write the definition, what are sigmatropic reactions and what are the conditions that required for sigmatropic reactions. तो sigmatropic reaction के लिए condition क्या लगेंगे वो पहले यहाँ पर हम लिखते हैं. Required condition for sigmatropic reactions. Okay. So condition for sigmatropic reaction. Sigmatropic reaction. So first condition is what? Unsaturation is must, and with unsaturation, alpha saturation is must for the sigmatropic reaction. So we have to write here alpha saturation with pi system. With pi system. So what it means? Alpha saturation with pi system. इसका मतलब क्या होता है? अल्फा सैचुरेशन विथ पाई सिस्टम का मतलब होता है कि आपके पास में ए सिंगल बॉन्ड, बी डबल बॉन्ड, सी टाइप का मॉलिक्यूल हो एंड दिस ए मॉलिक्यूल और ए टाइप ऑफ एटम इज अटैच विथ जेड टाइप ऑफ एटम्स और ग्रुप. ओके. सो वी कैन कॉल इट एज ए दिस इज अ पाई सिस्टम. ये क्या है? अपने पास में पाई सिस्टम है एंड दिस ए इज अल्फा सैचुरेशन. ए को क्या बोलेंगे? ए को कहा जाएगा अल्फा सैचुरेशन. सो what is the basic condition for sigmatropic shift reaction? Alpha saturation is must with the pi system. So we have pi system and this is alpha saturation. Why it is saturation? क्योंकि इसके पास में कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है और यहाँ पर एक एटम या ये Z जो रहेगा ये ग्रुप रहेगा. तो Z में भी एटम, ये कोई एटम भी हो सकता है, इट में भी ग्रुप. ठीक है. तो what happened in sigmatropic shift reactions or sigmatropic reactions? A migration of sigma bond happens over here and this sigma bond actually migrated over the new position of unsaturation. Okay, across the pi electron system. For example, we'll do the sigmatropic reaction for this molecule. We have finded the condition. This is the simplest condition that sigmatropic shift reaction requires. It means that हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि सिग्माट्रोपिक शिफ्ट रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा रिएक्शन में, पहली बात. और उसी मॉलिक्यूल में क्या क्या चीजें जरूरी है? उस मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड जरूरी है, डबल बॉन्ड वाला सिस्टम जरूरी है, और दूसरा जो है एक सैचुरेटेड सिस्टम जरूरी है और उस पर कोई ग्रुप्स या एटम वहां पर होने चाहिए जो कि शिफ्ट होंगे. तो किस तरीके से शिफ्ट होंगे? तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि सपोज वी हैव दिस ए जेड बी डबल बॉन्ड सी. देन व्हाट हैपेंड इन दिस केस? This Z atoms or group will shifted from A to C. ये क्या हो गया? A से शिफ्ट हो गया C पर. तो हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं कि this Z atom or group will shifted from one position to another position and therefore we are calling it as a sigmatropic shift reaction. And why sigmatropic shift? Because this sigma bond will broken and it develops a new sigma bond at another position. And simultaneously what happens? This double bond will shifted on across the saturated alpha position. So what we will get over here? हमको यहाँ पर बनेगा क्या मिलेगा? A double bond B single bond C and Z. So these Z atoms or group will shifted from alpha saturated position to pi electron system. Alpha saturated position to pi electron system, and this is simply a sigmatropic shift reaction.
इसी को क्या कहा जाता है? सिग्माट्रोपिक शिफ्ट रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर? यहां तक बात समझ में? इसे कहेंगे सिग्माट्रोपिक शिफ्ट रिएक्शन। आई विल राइट डेफिनेशन ओवर हियर। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्माट्रोपिक रिएक्शन? उसका डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप सब भी लिखेंगे, ठीक है? आप सब लोग भी लिखेंगे, बाकी लोगों को बोलिए ज्वाइन करना है फास्ट। अभी 8 ही लोग ज्वाइन हुए, ठीक है? हाँ चलिए, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्माट्रोपिक रिएक्शन? द माइग्रेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। क्या हुआ यहाँ पर? सिग्मा बॉन्ड माइग्रेट हुआ, तो हम लिखेंगे द माइग्रेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। क्या माइग्रेट हुआ? सिग्मा बॉन्ड माइग्रेट हुआ। विथ, किस तरीके से? विथ एटम और ग्रुप। माइग्रेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विथ एटम्स और ग्रुप कहां से माइग्रेट हुआ? फ्रॉम अल्फा पोजीशन, फ्रॉम अल्फा पोजीशन ऑफ unsaturation to new position across pi system. इसको बोला जाता है, is called as sigma tropic shift reaction. सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट रिएक्शन। क्लियर अप टू दिस? तो यहाँ पर डेफिनेशन आपने देखा कि क्या हो रहा है? माइग्रेशन ऑफ बॉन्ड विथ एटम्स और ग्रुप। सो दिस सिग्मा बॉन्ड विल गेट माइग्रेटेड विथ दिस Z atoms or group at the new position across this pi system is called as सिग्माट्रोपिक शिफ्ट रिएक्शन। तो ये सिग्माट्रोपिक शिफ्ट रिएक्शन हो गया। अब इसके अंदर क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि कैसे पहचानेंगे हम सिग्माट्रोपिक शिफ्ट रिएक्शन हुआ है? ठीक है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट द सिग्माट्रोपिक शिफ्ट रिएक्शन टेक्स प्लेस ओवर हियर? तो इसके लिए आपको इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर समझनी जरूरी है। कैरेक्टरिस्टिक में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि न्यू जो सिग्मा बॉन्ड डेवलप हो रहा है एक नए पोजीशन पर, और जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हो गया दूसरे पोजीशन पर। यानी यहाँ पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे इन रिएक्टेंट और इन प्रोडक्ट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स और ग्रुप्स आर सेम एज वेल एज द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स आर सेम। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक में, यानी आपको अगर पहचाननी है कि इस मॉलिक्यूल में किस टाइप की रिएक्शन हुई है पेरिसाइक्लिक, तो आप वहां पर आसानी से ये कह सकते हैं उस मॉलिक्यूल को देखकर you can easily identify that total number of atoms or groups are same, then you can say yes, it is sigmatropic. After that you have to say the total number of sigma bonds and pi bonds are same, so then you can easily identify that it is sigmatropic shift reaction. ठीक है, तो कुछ चीजें हम यहाँ पर इसमें लिखते हैं कि जो Z एटम है यहाँ पर, इस Z को हम क्या लिखेंगे? This Z is migrating group. This Z is what? It is migrating group. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं द माइग्रेटिंग ग्रुप डेवलप्स न्यू सिग्मा बॉन्ड एट द न्यू पोजीशन अक्रॉस द पाई सिस्टम। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पर लिख सकते हैं द इनिशियल पोजीशन ऑफ माइग्रेटिंग ग्रुप इज कॉल्ड एज माइग्रेशन ओरिजिन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द माइग्रेटिंग ग्रुप इज कॉल्ड एज माइग्रेशन टर्मिनस। ठीक है, तो हम लिखेंगे Z इज, क्या है Z इज माइग्रेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो Z इज माइग्रेटिंग ग्रुप। ठीक है, आगे लिखेंगे द इनिशियल पोजीशन ऑफ Z इज कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है? इज कॉल्ड एज migration origin, is called as migration origin, and the final position of migrating group, that is Z, of migrating group, that is Z, is migration
terminus is migration terminus. Okay, everything is clear to all. So in sigmatropic shift reaction, what happens? The development of sigma bond over the pi electron system or pi unsaturation system takes place. Okay, यहाँ पर और कुछ बातें हम लिखेंगे जो ऑब्जर्व हम यहाँ पर कर रहे हैं चीजों को उस तरीके से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि द मोमेंट ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स जो हुआ यहाँ पर वो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है और पाई बॉन्ड रिएक्ट। So these are some characteristics of sigmatropic shift reaction. हम लिखेंगे the moment of sigma and pi bonds are in opposite direction. Are in अपोजिट डायरेक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो सिग्मा बॉन्ड मूव हुआ और ये जो पाई बॉन्ड मूव हुआ वो कैसे मूव हुए? दे आर मूव्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। देयरफॉर वी हैव सेड दैट दिस इज द वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ sigmatropic shift reactions. The movement of sigma and pi bonds are in opposite direction. After that, what we have to say, the total number of sigma and pi bonds, the total number of sigma and pi bonds in reactants and products are same. कैसे रहेंगे? ये सेम रहेंगे। तो आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड टोटल नंबर ऑफ pi bond in this reactant and this is the reactant and this is product, both are actually same, and this is another characteristic we can say of the sigmatropic shift reactions. Clear up to this? Okay. आगे बात करते हैं। जो माइग्रेट होगा, सिग्मा बॉन्ड यहाँ से माइग्रेट हुआ, तो ये माइग्रेशन जो होता है सिग्मा बॉन्ड का, the migration of sigma bond at the termini of pi unsaturation takes place, maybe at the middle of unsaturation or maybe at the end of molecule. तो सपोज हम क्या करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? the migration of sigma bond, the migration of sigma bond at the termini of unsaturation, at the termini of unsaturation may be at the middle or at the end of molecule. At the end of molecule. So what does it means? What does it means? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि suppose we have this is A unsaturation having Z type of atom or group. ठीक है, A unsaturation है, उसमें Z type का atom और group है। तो इस A type के atom में के आगे जो है unsaturation यहाँ पर रह सकता है B डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड E डबल बॉन्ड F, इस टाइप का अनसैचुरेशन है, यानी कंटिन्यूअस यहाँ पर क्या है? अनसैचुरेशन है। तो जब सिग्माट्रोपिक शिफ्ट रिएक्शन होगा तो ये जो Z ग्रुप है हमने यहाँ पर लिखा, तो माइग्रेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एट द टर्मिनी ऑफ अनसैचुरेशन मे बी एट द मिडल और मे बी एट द एंड ऑफ मॉलिक्यूल। सो इफ दिस आर Z ग्रुप शिफ्टेड फ्रॉम A to C, then what we have to say? The migrating group migrates at the middle of unsaturation. Migration at the middle of molecule, middle of molecule. ठीक है, यहाँ पर हम ये कहेंगे कि माइग्रेशन कैसे हुआ? माइग्रेशन हुआ एट द मिडल ऑफ मॉलिक्यूल। तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर आ गया Z, ये C से अटैच है E डबल बॉन्ड F।
ठीक है. Another thing is what we have again the same type of molecule A single bond B double bond C single bond E double bond F, and we have here Z group. Okay. Then this, if this Z group is shifted from A to F directly, why? Because it has a double bond, single bond and double bond. Conjugation system is there. So this A is shifted, so we have to write here the migration of Z is shifted. The migration is at the end of molecule. At the end of molecule. तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि माइग्रेशन मिडल ऑफ अनसैचुरेशन में भी हो सकता है और जो माइग्रेशन है वो एंड ऑफ अनसैचुरेशन में भी हो सकता है. तो डिपेंड करेगा कि माइग्रेशन कहाँ हुआ, उस टाइप से हम उसको, उस रिएक्शन को नाम दे सकते हैं. तो यहाँ पर हम Z ग्रुप को शिफ्ट किया हमने F पे, तो ये डबल बॉन्ड रिवर्स में शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड रिवर्स में शिफ्ट होगा. ये A यहाँ से A और Z का बॉन्ड टूट गया और प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर A डबल बॉन्ड B बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड E सिंगल बॉन्ड F, और इस F पे ये जो Z ग्रुप है, ये Z ग्रुप क्या हो गया, शिफ्ट हो गया. ठीक है, Z ग्रुप शिफ्ट हो गया. तो इसको हम कहेंगे कि माइग्रेटिंग ग्रुप जो है माइग्रेट हुआ सैचुरेटेड पोजीशन से एंड ऑफ मॉलिक्यूल पर, और पहले केस में सैचुरेटेड पोजीशन से मिडल ऑफ अनसैचुरेशन पर. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है सिग्माट्रोपिक शिफ्ट रिएक्शन की. अब हम यहाँ पर आगे बात करते हैं नोटेशन ऑफ सिग्माट्रोपिक शिफ्ट रिएक्शन. क्या नोटेशन क्या रहेगा सिग्माट्रोपिक शिफ्ट रिएक्शन को, ये लिखे क्या सबने, यहाँ तक लिखे? ठीक है. तो सिग्माट्रोपिक रिएक्शन क्या है वो समझा. एक सैचुरेटेड का पोजीशन चाहिए अल्फा वाला, उस पर कोई एटम्स और ग्रुप होंगे, वो शिफ्ट हो जाएंगे. ठीक है. उसके बाद में शिफ्टिंग जो होगा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का अपोजिट डायरेक्शन में होगा. ठीक है. तो ये तमाम चीजों की बात हमने की है, इसको लिख लो पहले. ठीक है, बढ़ते आगे, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. नेक्स्ट पॉइंट है नोटेशन ऑफ सिग्माट्रोपिक शिफ्ट रिएक्शन, दैट इज एलजे शिफ्ट एंड आईजे टाइप ऑफ शिफ्ट. इट इज आल्सो इन योर सिलेबस. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज एलजे एंड आईजे टाइप ऑफ शिफ्ट. क्या मतलब क्लियर है सबको? ठीक. नेक्स्ट पॉइंट इज notation of sigmatropic shift reaction. ठीक है. Notation of sigmatropic shift reaction. So as we deal with notation, so there are two types of notation can be given to sigmatropic shift reaction. First one is LJ shift. First one is LJ shift. And what are LJ shift? The migrating group develops one new attachment and other old attachment. So we have to write here during the reaction, if migrating group during the reaction, if migrating group
or atom develops one new attachment and other old attachment. Then it is LJ shift. Then it is LJ shift. इसको क्या कहा जाता है? LJ shift कहा जाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, 1,5, 1,7, 1,9 sigma tropic shift. So these are some shift occurs during a sigma tropic reactions, and all these are examples of LJ type of shift. For example, that we have already written one example, a general example, that is A single bond B double bond C and A is attached with Z. So in this case what happens? So if we give the one number to this A, second to B and third number to the C, and we know this is a migrating group, it migrates from first position to third position, and this double bond will shifted from 2,3 to 1,2. So this kind of shift of this Z molecule is called as 1,3 shift. This is 1,3 shift of Z. So what happens? The product will be A double bond B single bond C, and here what we'll get? We'll get the Z. So this shift is 1,3 shift, and what we have to observe over here, the position of Z will get changes, but if we see the attachments, so here the Z molecule is attached with A and A is attached with Z. Okay, so this is actually old attachment. Okay, old attachments. But after the sigmotropic shift reaction, what we observe? This is new attachment, क्योंकि यहाँ पर नया बॉन्ड डेवलप हुआ, बट Z ही ग्रुप माइग्रेट हुआ, तो ये वाली जो अटैचमेंट है ये ओल्ड ही रही. इसलिए हम इस टाइप के सिग्माट्रॉपिक शिफ्ट को क्या कहते हैं? इसको हम LJ टाइप ऑफ शिफ्ट कहते हैं. ठीक है, दिस इज LJ टाइप ऑफ शिफ्ट. वन अटैचमेंट इज न्यू, अनदर वन इज ओल्ड अटैचमेंट. ठीक है, दूसरी ओल्ड वाली रहेंगी, तो इसको हम कहते हैं LJ शिफ्ट रिएक्शन. ठीक है, तो इसमें एग्जांपल कौन कौन से LJ शिफ्ट के? 1,3 है, 1,5, 1,7, 1,9. This type of shift are LJ type of IJ shift. IJ शिफ्ट किसे कहेंगे? कि ऐसे सिग्माट्रॉपिक रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के अंदर माइग्रेशन के बाद में दोनों भी अटैचमेंट जो रहेंगे वो न्यू रहेंगे. ठीक है, दोनों भी अटैचमेंट कैसे रहेंगे? न्यू रहेंगे. तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइग्रेटिंग ग्रुप डेवलप बोथ द न्यू अटैचमेंट्स. ठीक है, तो लिखेंगे द सिग्माट्रॉपिक रिएक्शन, द सिग्माट्रॉपिक reaction in which migrating group develops both new attachment. ठीक है, migrating group develops both new attachments are called as IJ शिफ्ट. तो LJ को याद रखना है. L में ओल्ड के अंदर भी L होता है, तो यानी एक ओल्ड अटैचमेंट रहेगा, एक ही अटैचमेंट न्यू बनेगा इसमें. और IJ शिफ्ट किसको कहेंगे? ऐसे शिफ्ट जिसमें दोनों भी अटैचमेंट जो होते हैं वो न्यू होते हैं. एग्जाम्पल होता है, इसका एग्जाम्पल लेंगे. एग्जाम्पल इसका 2,3 शिफ्ट एंड 3,3 शिफ्ट, या फिर 5,5 शिफ्ट. ठीक है, क्या इसके एग्जांपल्स? 2,3 शिफ्ट,
3-3 shift or 5-5 shift. These are the examples of IJ type of shift. ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसका. सपोज वी हैव, यहाँ पर हम लेंगे एक एग्जाम्पल सिंपल 3-3 का. आपके पास में यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पर ये दूसरा डबल बॉन्ड है. ठीक, तो ये दो कार्बन को हम लिखेंगे स्टार वाले कार्बन. ठीक है, अब इन दोनों की बात करते हैं तो यहाँ पर इसको नंबर देंगे सैचुरेटेड कार्बन से या सैचुरेटेड एटम से नंबरिंग हमको स्टार्ट करनी है. तो सैचुरेटेड एटम को यहाँ पर हम देंगे इसको 1 नंबर, ये 2 और ये 3. उसी तरीके से इस सैचुरेटेड वाले कार्बन को हम पहला नंबर देंगे, ये दूसरा और ये तीसरा. इसमें होगा 3-3 शिफ्ट. 3-3 शिफ्ट. कैसे 3-3 शिफ्ट? क्योंकि ये 3 और 3 वाले जो कार्बन है उसमें यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा. ये डबल बॉन्ड 1-2 में शिफ्ट होगा और ये 1-1 का बॉन्ड ब्रेक होकर 1-2 में शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ बन गया सिंगल बॉन्ड और यहाँ बना डबल बॉन्ड. यानी जो स्टार वाले कार्बन थे उनमें आ गया डबल बॉन्ड. ये 1, 2 और 3 था, ये 1, 2 और 3 था. तो 3-3 में नया बॉन्ड बन गया और 1-1 का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया. डबल बॉन्ड 1-2 में शिफ्ट हो गए. इसको हम क्या कहेंगे? 3-3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट रिएक्शन. अब इसके अंदर आप देखिए कि जो स्टार वाले दो कार्बन थे 1-1 वाले, उसमें ओल्ड अटैचमेंट था और नया अटैचमेंट किसमें हुआ? यहाँ पर 3 वाला कार्बन में नया बॉन्ड बन गया तो ये भी न्यू अटैचमेंट हो गया और ये भी न्यू अटैचमेंट हो गया. तो बोथ अटैचमेंट्स आर न्यू. इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसलिए इसको हम आईजे टाइप ऑफ शिफ्ट रिएक्शन कहते हैं. तो यहाँ तक हमने बात समझे. सिग्माट्रोपिक रिएक्शन क्या है, एलजे आईजे शिफ्ट क्या होता है. ठीक है, सिग्माट्रोपिक शिफ्ट रिएक्शन क्या है, एलजे आईजे शिफ्ट क्या होता है. अब इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है आपके सिलेबस में सुपरफिशियल और इंट्राफिशियल शिफ्ट फॉर आईजे टाइप ऑफ रिएक्शन. ठीक है, उसमें कोप है, उसके बाद उसके अलावा कोप, डिजेनरेट कोप, क्रेजन, इतने एग्जाम्पल उसमें आपको दिए गए. ठीक है, तो हम बढ़ते आगे. एलजे आईजे समझ में आया सबको कि एलजे आईजे में क्या करना है आपको? सिर्फ एलजे यानी 13, 15, 17, 19 टाइप के शिफ्ट जहां पर होंगे उसको एलजे शिफ्ट कहेंगे हम, जिसमें एक न्यू अटैचमेंट मिलती है हमको और एक ओल्ड ही अटैचमेंट रहती है. आईजे टाइप ऑफ शिफ्ट रिएक्शन में दोनों भी अटैचमेंट न्यू रहेंगे. इनके एग्जाम्पल में 2-3 शिफ्ट अगर होता है, 3-3 शिफ्ट होता है, 5-5 शिफ्ट होता है, तो ये तमाम एग्जाम्पल आईजे टाइप ऑफ शिफ्ट के रहेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे है आपको सुपराफेशियल शिफ्ट और इंट्राफेशियल शिफ्ट. नेक्स्ट पॉइंट है आगे सुपराफेशियल शिफ्ट और इंट्राफेशियल शिफ्ट. द नेक्स्ट पॉइंट इज सुपराफेशियल शिफ्ट. अब सुपराफेशियल शिफ्ट किसे कहेंगे और दूसरा पॉइंट है, ठीक है, दोनों को साथ में लेते हैं, इंट्राफेशियल शिफ्ट. तो जनरली कायरल मॉलिक्यूल्स में स्टीरियोकेमिस्ट्री फाइंड करने के लिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री डिटरमाइन करने के लिए हम जो है सुपराफेशियल और इंट्राफेशियल शिफ्ट की बात करते हैं. तो सुपराफेशियल इंट्राफेशियल शिफ्ट का यूज क्या है? टू डिटरमाइन द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन. ठीक है, किसी भी रिएक्शन की स्टीरियोकेमिकल फीचर अगर हमको पता करना है तो वहां पर हम सुपराफेशियल या इंट्राफेशियल शिफ्ट जो है वो देखते हैं. ठीक है, तो सुपराफेशियल और इंट्राफेशियल शिफ्ट यहां पर मैं लिखता हूं, दे आर यूज्ड टू डिटरमाइन, दे आर यूज्ड टू डिटरमाइन स्टीरियोकेमिस्ट्री और स्टीरियोकेमिकल फीचर ऑफ सिग्माट्रोपिक रिएक्शन. ठीक है, सिग्माट्रोपिक रिएक्शन में स्टीरियोकेमिकल फीचर अगर हमको डिटरमाइन करना है किसी मॉलिक्यूल का तो उसके लिए हम क्या करते हैं? तो उसके लिए हम इंट्राफेशियल और सुपराफेशियल शिफ्ट की बात करते हैं. तो एक्चुअल में क्या होता है इंट्राफेशियल शिफ्ट, क्या होता है सुपराफेशियल शिफ्ट? तो इंट्राफेशियल शिफ्ट और सुपराफेशियल शिफ्ट एक्चुअली जो माइग्रेटिंग ग्रुप शिफ्ट हो रहा है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा वो डिसाइड करता है. सपोज वी हैव, पहले से हमने जनरल एग्जांपल लिए, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं.
सपोज वी हैव ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी और ए के पास में ये वाला जेड ग्रुप है, ठीक है। तो अब ये जेड ग्रुप दो तरीके से शिफ्ट हो सकता है। एक शिफ्ट तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया, बॉन्ड सी यहाँ पर जेड आएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, ए डबल शिफ्ट हुआ सी पर ही, लेकिन तरीके दो तरीके से हो गया। एक क्या हो गया, ओरिजिनली ये जो जेड था ये सपोज हम इसको कंसिडर करते कि ये लोअर फेस पर था, ठीक है, या फिर लोअर साइड पर था। तो यहां पर क्या हुआ, प्रोडक्ट में जेड शिफ्ट हो गया सी पर, और अभी भी कैसा है ये, अभी भी ये है लोअर साइड या लोअर फेस पर, ठीक है। सेकंड केस में क्या हुआ कि जो जेड शिफ्ट हुआ ये शिफ्ट हो गया अपर फेस पर या अपर साइड पर, बराबर। तो स्टार्टिंग मटेरियल में जेड लोअर फेस पर था, प्रोडक्ट में अगर अपर फेस में लोअर फेस में ही जाता है उसको कहा जाएगा सुप्राफेशियल शिफ्ट। क्या कहा जाएगा उसको, सुप्राफेशियल शिफ्ट, ठीक है। तो हम कहेंगे कि पहला वाला जो शिफ्ट हुआ जेड का ये हुआ सुप्राफेशियल, ठीक। लोअर साइड वाला ग्रुप या एटम लोअर साइड पर शिफ्ट होता है तो सुप्राफेशियल शिफ्ट। लोअर साइड वाला अगर ग्रुप और एटम अपर साइड में शिफ्ट होता है शिफ्टिंग के बाद में, उसको कहा जाएगा एंट्राफेशियल शिफ्ट। एंट्राफेशियल शिफ्ट यानी इसमें क्या हो रही, अगर रिएक्टेंट कायरल मॉलिक्यूल है तो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर सेम रहेगी, रिटेन रह रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि सुप्राफेशियल शिफ्ट हुआ। और अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री अपोजिट चली गई या फिर इन्वर्जन हो गई तो वहां पर हम क्या कहेंगे कि एंट्राफेशियल शिफ्ट हुआ। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द माइग्रेटरी ग्रुप migrates on the same phase of unsaturation, then we can call it as a suprafacial shift. If the migratory group migrate on opposite phase of unsaturation or opposite side of unsaturation, then we can call it as a intrafacial shift. तो definition हम उसकी लिख सकते हैं यहाँ पर, what is suprafacial shift? If the migrating group develops new sigma bond on same phase of unsaturation, then it is suprafacial shift. इसको क्या कहेंगे, सुप्राफेशियल शिफ्ट। यानी माइग्रेटिंग ग्रुप का जो सिग्मा बॉन्ड है लोअर फेस पे था, लोअर फेस पे ही बना। इफ द माइग्रेटिंग ग्रुप डेवलप्स न्यू सिग्मा बॉन्ड ऑन अपोजिट फेस ऑफ अपायन सैचुरेशन, देन इट इज एंट्राफेशियल शिफ्ट। तो एंट्राफेशियल शिफ्ट किसे कहेंगे, इफ द माइग्रेटिंग ग्रुप, यहां पर ग्रुप रह गया, if the migrating group develops, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आपने पूरा लिखना है, GROUP ग्रुप। if the migrating group develops new sigma bond on opposite phase, opposite को भी शॉर्ट में लिख रहे हैं, on opposite phase or opposite phase or opposite side of unsaturation, then it is intrafacial shift. Intrafacial shift इसको क्या कहा जाता है, इंट्राफेशियल शिफ्ट कहा जाता है। क्लियर, यहां तक समझ में बात। सिग्मोट्रॉपिक रिएक्शन किसे कहेंगे, एलजे आईजे टाइप ऑफ शिफ्ट क्या होता है, सिग्मोट्रॉपिक रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या लगेंगे, और एंट्राफेशियल शिफ्ट किसे कहेंगे, और सुप्राफेशियल शिफ्ट किसे कहेंगे। ये तमाम चीजें हमने यहां तक एक्सप्लेन की हैं। उसके बाद है सिलेक्शन रूल्स। सिलेक्शन रूल्स फॉर सिग्मोट्रॉपिक शिफ्ट रिएक्शन, बेसिकली आईजे टाइप ऑफ सिग्मोट्रॉपिक शिफ्ट रिएक्शन, ठीक है। आईजे एलजे दोनों के लिए भी हम देख सकते हैं। यहां तक लिखे सबने।
साथ में चल रहे हैं सब लोग? इसमें किसी कुछ दिक्कत है, डाउट है तो पूछो। क्लियर यहाँ तक? आगे सिलेक्शन रूल्स फॉर सिग्मोट्रॉपिक शिफ्ट रिएक्शन, ये लिख लिया, इतना हो गया। इसको लिखते चलो कंटिन्यू, और इसमें कहीं पर डिफिकल्टी आती है तो पूछो। सिलेक्शन रूल से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, आपको उसमें पहचानना है कि किस टाइप की सिग्मोट्रॉपिक रिएक्शन है। एलजे हुई कि आईजे हुई, और एलजे में कौन सी है। फिर अगर एलजे है तो 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, कौन सी टाइप की है। आईजे है तो फिर उसमें कौन सी टाइप की सिग्मोट्रॉपिक शिफ्ट रिएक्शन हुआ, 3-3 हुआ या 2-3 हुआ या फिर 5-5 हुआ, वो पहचानना है आपको। पहचानेंगे? ठीक है, कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिखते हैं इसके। मैं लिखता हूँ पहला एग्जांपल। The first example is for here, suppose we have here R group, ठीक है, और ये रिएक्शन हो सकती है थर्मल कंडीशन में भी, फोटोकेमिकल कंडीशन में। यहाँ पर आपको दोनों कंडीशन दिए गए, थर्मल, फोटोकेमिकल, और प्रोडक्ट दिया गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। प्रोडक्ट दिया गया कुछ इस तरीके से, यहाँ पर है R, यहाँ है डबल बॉन्ड, यहाँ है सिंगल बॉन्ड। रिएक्शन नंबर फर्स्ट, तो आपको बताना है शिफ्ट कौन सा हुआ। आपको बताना है कौन सा शिफ्ट हुआ और क्या शिफ्ट हुआ। वहां पर आर शिफ्ट हुआ क्या हाइड्रोजन हुआ। यहाँ पर दो चीजें, एक एच है और दूसरा आर है, तो शिफ्ट क्या हुआ आपको वो भी बताना है। 13 हुआ, 15 हुआ, वो भी बताना है। कैसे पहचानेंगे आप कौन सा शिफ्ट हुआ? बता सकते हैं? सर 13 शिफ्ट हुआ, पाई बॉन्ड से पहचानेंगे अपन। हाँ वेरी गुड, 13 शिफ्ट हुआ, 13 हाँ। शिफ्ट हुआ। लेकिन क्या हुआ 13 हाइड्रोजन हो गया कि आर ग्रुप हुआ? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन जी। शिफ्ट हुआ सर। हाँ हाइड्रोजन वेरी गुड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ। तो यहाँ से नंबर देंगे सैचुरेटेड पोजीशन से, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन 1 से शिफ्ट हो गया 3 पोजीशन पर, तो डबल बॉन्ड 1 2 में चला गया। तो ये 1 2 और ये 3, यहाँ पर ऑलरेडी एक हाइड्रोजन था, अब 2 हाइड्रोजन आ गए तो ये सैचुरेटेड बन गया। तो हम कहेंगे ये क्या हुआ, यहाँ पर 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल वही है, शिफ्ट क्या हुआ आपको वो बताना है। आर है, यहाँ पर एच है, ठीक है। अगर हम इसको लाइट रेडिएशन सप्लाई करते, हीट करते हैं, और सपोज कर ये कहते हैं कि शिफ्ट यहाँ पर कुछ इस तरीके से हुआ, ये आर यहाँ का यहीं पर है, यहाँ पर बना डबल बॉन्ड, यहाँ पर बना डबल बॉन्ड। तीसरा, इसको हम क्या करते हैं, स्टार वाला कार्बन बताते हैं कि भाई ये कार्बन स्टार वाला। चलो सेकंड केस में क्या हुआ, में 15 हुआ जी 15। हाँ वेरी गुड, 15 शिफ्ट हो गया। यानी अगर ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, क्या शिफ्ट हुआ 15 पे? हाइड्रोजन हुआ क्या आर हुआ?
हाइड्रोजन हाइड्रोजन यस 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, यहाँ पर 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, वेरी गुड। और इसमें लास्ट वाले में 1,5 सर इसमें भी हुआ, लेकिन इसमें एल्किल ग्रुप हुआ सर। हाँ 1,5 आर R ग्रुप group। शिफ्ट हो गया, 1,5 आर ग्रुप शिफ्ट हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें क्या हुआ, हम्म, 3-3 शिफ्ट हुआ इसमें। हाँ इसमें 3-3 शिफ्ट हुआ, यानी ये सैचुरेटेड कार्बन यहाँ से 1 2 3, यहाँ से ये 1 2 3, हम कहेंगे इसमें हो गया 3,3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट। ठीक है, तो ये 3 जो एग्जांपल थे ऊपर के, इसको एलजे टाइप ऑफ शिफ्ट कहेंगे हम, और इसको आईजे टाइप ऑफ शिफ्ट कहेंगे। ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर 5, दिख रहा है एग्जांपल, क्या है, कायरल कार्बन। ठीक है, इससे हमको प्रोडक्ट मिला ये वाला, क्या बना प्रोडक्ट, कौन सा ग्रुप शिफ्ट हुआ, 1,5 सर, ये आर अल्काइल ग्रुप कार्बोनेट H हुआ सर। अब देखो इसके अंदर 1,5 शिफ्ट कब होगा वो याद रखना है। 1,5 शिफ्ट कब होगा, जब आपके पास में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है और यहाँ पर कोई ग्रुप है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसा शिफ्ट होगा, यानी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अगर है आपके पास में तब। अब ये मॉलिक्यूल में ऐसा है क्या, कहीं पर एक ही डबल बॉन्ड है ना, इधर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है क्या, इसमें नहीं है, तो इसके अंदर 1,5 हो नहीं सकता, इसमें 1,5 हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि 1,5 के लिए क्या जरूरी है, 2 डबल बॉन्ड जरूरी है कॉन्जुगेशन में, इसके पास में एक ही डबल बॉन्ड है, तो इसमें ज्यादा ज्यादा क्या पॉसिबल है, 1,3 शिफ्ट ही पॉसिबल है। ठीक है, इसमें पॉसिबल है 1,3 शिफ्ट। ठीक है, 1,3 शिफ्ट कैसे होगा, एक तो ये 1 2 3, यहाँ से ये ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, या फिर यहाँ से ये ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा 1 2 3 इस कार्बन पर और इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया, इसको मैं वापस से लिखता हूँ, ऐसा लिख लेंगे इसको और क्लियर हो जाएगा। ये 6 मेंबर्ड की रिंग, यहाँ पर ऑलरेडी एक बॉन्ड था, हम इसको क्या करते हैं, इस बॉन्ड को इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया है ना, तो ये बन गया इस तरीके से 3 मेंबर्ड की रिंग, यहाँ पर क्या है, आर ग्रुप है, यहाँ पर क्या है, डी है, डबल बॉन्ड आ गया इधर। ठीक है, अब क्लियर दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, समझे।
तो क्या हुआ यहाँ से, ये जो R ग्रुप है, ये पूरा जो ग्रुप है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ से यहाँ पर, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया इधर। हम इसको कहेंगे कि अगर ये 1 2 3 है तो यहाँ से क्या हुआ, 1 3 ग्रुप शिफ्ट हुआ, 1 3 ग्रुप शिफ्ट हुआ, ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या है कि ये जो ग्रुप है, ये यहाँ पर है कायरल कार्बन। कैसा कार्बन है, कायरल कार्बन। उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री देखेंगे हम यहाँ पर इस कायरल कार्बन की तो सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्रुप शिफ्ट हुआ वो कैसे हुआ, वो हुआ सुप्राफैशियल। कैसा शिफ्ट हुआ ग्रुप, सुप्राफैशियल हो गया। सुप्राफैशियल क्यों हुआ, क्योंकि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। आर की स्टीरियो केमिस्ट्री जो थी वही है, डी की स्टीरियो केमिस्ट्री जो थी वही है। तो हम इसलिए इस रिएक्शन को कह सकते हैं कि ये सुप्राफैशियल ग्रुप शिफ्ट है। कैसा ग्रुप शिफ्ट है, सुप्राफैशियल ग्रुप शिफ्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम यहाँ तक हमको कुछ एग्जाम्पल हमने लिए, एग्जाम्पल समझ में आए कि भाई किस तरीके से शिफ्ट रिएक्शन हो सकता है। अब इसके अंदर जो एलजे टाइप के शिफ्ट है 1 3 1 5 1 7 1 9, उसके हम कुछ सिलेक्शन रूल देखते हैं, ठीक है। आईजे टाइप ऑफ शिफ्ट रिएक्शन के ज्यादा सिलेक्शन रूल नहीं है, वो इजीली हम वहां पर उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, पहचान भी सकते हैं। और आईजे टाइप ऑफ शिफ्ट रिएक्शन में जनरली आपको पूछे जाने वाले रिएक्शन, यानी आपके सिलेबस में 3 रिएक्शन है। एक तो कोप रिएक्शन, डीजेनरेट कोप, वो सेम ही है, और तीसरा है क्लेजन, ठीक है। तो ये 3 रिएक्शन है आपको आईजे टाइप ऑफ शिफ्ट में, यानी 3-3 शिफ्ट के अंदर। 2-3 शिफ्ट भी आपके सिलेबस में कहीं नहीं दिया गया। तो 3-3 शिफ्ट के अंदर जो 3 एग्जाम्पल है उसकी मैं अभी बात कर लेता हूँ, आपको वो समझ में आ जाएगा। उसके बाद में हम सिलेक्शन रूल देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 3-3 शिफ्ट रिएक्शन, 3-3 शिफ्ट रिएक्शन। 3-3 शिफ्ट में कौन कौन से एग्जाम्पल है आपको, आपके लिए है कोप रिएक्शन, दूसरा है डीजेनरेट कोप। अब ये डीजेनरेट कोप क्या होता है उसकी बात हम करेंगे, और तीसरी रिएक्शन है इसमें क्लाइजन, क्लाइजन रीअरेंजमेंट। ये तीनों एग्जाम्पल है 3-3 सिग्मोट्रॉपिक शिफ्ट रिएक्शन के, जिसके अंदर से कोप और डीजेनरेट कोप के लिए स्टार्टिंग मटेरियल मैं आपको बता दूं कि क्या होता है। इसमें लगता है हमको 1,5 डाइन। क्या लगता है इसमें स्टार्टिंग मटेरियल 1,5 डाइन अगर है कहीं पर तो याद रखना है उसमें क्या होगा, उसमें कोप होगा या फिर डीजेनरेट कोप होगा। डीजेनरेट कब होगा, डीजेनरेट होता है जनरली साइक्लिक सिस्टम में, ये होता है साइक्लिक सिस्टम में। और साइक्लिक सिस्टम में कब, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम हो। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसा रहेगा, इसमें सेम रहेगा, उसको डीजेनरेट कोप, यानी आपने रिंग ओपन भी की तो वही प्रोडक्ट मिल रहा, क्लोज भी हुई तो वही प्रोडक्ट मिल रहा, तो इसको बोला जाता है डीजेनरेट कोप रिएक्शन। तो दोनों के अंदर कंडीशन क्या लगेगा आपको, 1,5 डाइन जरूरी है। 1,5 डाइन का आप एग्जांपल ले सकते हैं कि 1,5 डाइन क्या होगा कि यहाँ पर क्या है आपके पास में डबल बॉन्ड, और यहाँ पर होना चाहिए डबल बॉन्ड। अब इस मॉलिक्यूल को आप गिनेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5, ये क्या है 1 पे डबल बॉन्ड है और 5वें कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इसको बोलेंगे हम 1,5 डाइन। कैसा डाइन है ये, डाई यानी 2, इन यानी डबल बॉन्ड, और उनकी पोजीशन रहना चाहिए 1 और 5 पर, तब हम क्या कहेंगे, दे आर 1,5 डाइन एंड दे आर जनरली अंडरगोज 3-3 शिफ्ट रिएक्शन, सिग्मोट्रॉपिक शिफ्ट रिएक्शन, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, कोप रीअरेंजमेंट रिएक्शन इसको कहा जाता है, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कोप रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर। क्लेजन के अंदर क्या लगता है स्टार्टिंग मटेरियल, क्लेजन रिएक्शन में हमको लगता है एक अलाइल विनाइल ईथर। क्या लगता है, एक अलाइल ईथर और दूसरा विनाइल ईथर। तो ये अलाइल ग्रुप हो गया और ये विनाइल ग्रुप हो गया। तो इसमें स्टार्टिंग मटेरियल हमको लगते हैं एलिल विनील ईथर, ठीक है। एलिल क्यों कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाद में और एक CH2 है, उससे ऑक्सीजन अटैच है, और यहाँ पर ऑक्सीजन से डायरेक्टली एक डबल बॉन्ड अटैच है। तो नंबरिंग यहाँ से देते हैं हम इसको 1 2 3, ऑक्सीजन को 1 2 3, तो ये भी 3-3 सिग्मोट्रॉपिक
शिफ्ट रिएक्शन शो कर सकता है। तो स्टार्टिंग मटेरियल इसमें क्या लग रहा है हमको, एलाइल विनाइल ईथर पहला, और दूसरा स्टार्टिंग मटेरियल इसमें लगेगा एलाइल अराइल ईथर, एलाइल अराइल ईथर। अब इसके अंदर चेंज क्या हुआ, सिर्फ अराइल ग्रुप, यहाँ पर विनाइल था उसके बदले में क्या आ गया, अराइल आ गया। तो ईथर लिखना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में एक कार्बन, इसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड। अब इसमें क्या रहेगा, ये बेंजीन रिंग आ जाएगा, डबल बॉन्ड था उससे क्या करे अपन ने बेंजीन रिंग जोड़ दिया, ये बन गया ये अलाइल ग्रुप और ये सॉरी अलाइल ग्रुप और ये अराइल ग्रुप, ये हो गया अलाइल अराइल ईथर। तो क्लेजन को पहचानना है तो अलाइल अराइल ईथर या फिर अलाइल विनाइल ईथर ढूंढो, क्लेजन होगा वहां पर। कोप की बात करना है तो कोप रीअरेंजमेंट में 1,3 डाइन का आपको अगर दिखता है स्टार्टिंग मटेरियल में 1,3 डाइन तो वहां पर होगा कोप रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिजेनरेट कोप कब होगा, ये साइक्लिक सिस्टम में होगा, और साइक्लिक सिस्टम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सीमित दिख रहे हैं आपको रीअरेंजमेंट होने के बाद में भी, तो तब आपको कहना है कि वो जो रिएक्शन हुआ वो डिजेनरेट कोप रिएक्शन हुआ। यहां तक समझ में आई बात। कोप के अंदर ऑक्सीकोप भी होता है, एजाकोप भी होता है। ऑक्सीकोप किसे कहेंगे, तो ऑक्सीकोप रिएक्शन में क्या रहता है कि यहाँ पर ये डाइन सेम रहेगा, यहाँ पर अगर OH आ जाता है इसको बोला जाता है ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। यानी ये भी डाइन कैसा है, 1,5 डाइन ही है, सिर्फ यहाँ पर अल्कोहल आ गया एक कार्बन पर, तो इससे कोई मतलब है ही नहीं हमको, रीअरेंजमेंट तो 3,3 यहाँ पर भी पॉसिबल है। तो यहाँ तक समझ में बात। कोप किसे कहेंगे, डिजेनरेट कोप किसे कहेंगे, क्लेजन किसे कहेंगे, स्टार्टिंग मटेरियल उसमें क्या लगेंगे, इतनी बातें आज हमने यहाँ पर की है। तो आज के लिए इतना ही, फिलहाल यहाँ पर हम रुकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इनके एग्जाम्पल्स, उसके साथ साथ हम बात करेंगे सिलेक्शन रूल की, सिलेक्शन रूल क्या होते हैं और सिलेक्शन रूल से कैसे पहचानेंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा, या फिर उसके लिए रिएक्शन कंडीशन क्या लगेगी कि 1,5 शिफ्ट कब होगा, 1,3 कब अलाउड होगा, ठीक है, कौन से कंडीशन में अलाउड होगा, वो तमाम चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। फिलहाल रुकते हैं यहाँ पर, बाकी बाद में देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो एग्जाम्पल जी हमने जो क्वेश्चन किए थे सर वो मिलेंगे क्या आप तक के सर वो? लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन थे क्वेश्चन दिए नहीं थे क्या आपको? जी सर, वो सर ग्रुप PF है तो आपके पास या जो भी हम लोग सर हमें लग रहे हो आप अच्छा ठीक है, रहेगा मैं सर। देखता हूं, मेरे पास में अगर उसका फोटो वगैरह होगा तो मैं सेंड करता हूँ, ग्रुप में डालता हूँ या फिर पर्सनली देता हूँ। ठीक है, फिलहाल रुकते हैं यहाँ पर, बाकी